بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں ہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق۔ وزیرستان کے سرحدی علاقے گھاریوم میں سیکیورٹی فورسز کی پیٹرولنگ پارٹی پر دہشت گردوں کی فائرنگ، سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی، ایک دہشت گرد ہلاک۔ فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن سبیح اور سپاہی نوید شہید، 2 جوان زخمی۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا کمپاؤنڈ تباہ کر دیا، ISPR۔ بھارتی فوج کی LOC پر اشتعال انگیزیاں جاری، بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول کے حاجی پیر اور بیدوری سیکٹر میں شہری آبادی پر فائرنگ، 13 سالہ لڑکی شہید جبکہ اس کی ماں اور 12 سالہ لڑکا شدید زخمی۔ پاکستانی فوج کی بھرپور جوابی کارروائی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری، تازہ کارروائی کے دوران سری نگر میں مزید 3 کشمیری نوجوان شہید، نوجوانوں کو پزوال پورہ میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ علاقے میں فوجی آپریشن جاری، شہر کے تمام علاقوں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروسز معطل۔ کورونا سے بچنے کے لیے عوامی مقامات پر فیس ماسک ضروری قرار، احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ہی وائرس سے بچا جا سکتا ہے۔ وبا کے دوران ہمیں اپنے بزرگوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ کورونا سے وفات پانے والے 72% افراد کی عمر 50 سال سے زیادہ تھی۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کی NCOC سے میڈیا بریفنگ۔ پاکستان میں کورونا کیسز کا گراف تیزی سے بلند، گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 4951 افراد میں وائرس کی تصدیق، تعداد 1,76,617 تک جا پہنچی، مزید 119 افراد جان کی باسی ہار گئے، مجموعی طور پر 3,501 اموات، 67,892 صحت یاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مانسون سیزن سے قبل اور ممکنہ سیلاب کے پیش نظر پیشگی حفاظتی انتظامات مکمل کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ دریاؤں میں پانی کی صورتحال کو ابھی سے مانیٹر کیا جائے، جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے موسم کے بارے میں مستند معلومات کا حصول یقینی بنانے کی ہدایت۔ ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تیاریاں ہر طرح سے پوری رکھی جائیں، سردار عثمان بزدار۔ آئندہ مالی سال کے لیے 465 ارب روپے سے زائد کا بجٹ پیش کیا ہے۔ بجٹ کے مجموعی خسارے کا تخمینہ 87.61 ارب روپے ہوگا۔ وبا کے بعد معاشی اور سماجی مسائل پر قابو پانے کے لیے بھی خصوصی فنڈ مختص، بلوچستان کے وزیر خزانہ میر ظہور بلیدی کی پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس۔ عوام کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے، کورونا سے متاثرہ علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا اطلاق کر دیا گیا ہے، ہمیں ڈاکٹرز اور طبی عملے کے ساتھ متحد ہو کر کورونا کے خلاف لڑنا ہے، حکومتی SOPs پر عمل کر کے ہی ہم کورونا سے بچ سکتے ہیں۔ صوبائی مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر کی نیوز بریفنگ۔ ممتاز عالم دین اور جامعہ بنوریا کے محتمم مفتی محمد نعیم کی نماز جنازہ آج بعد نماز عصر ادا کی جائے گی۔ وہ عارضہ قلب میں مبتلا تھے۔ مفتی محمد نعیم متعدد کتابوں کے مصنف تھے، حدیث اور تفسیر قرآن کے علوم میں انتہائی معتبر مقام رکھتے تھے۔ وزیراعظم عمران خان کا ممتاز عالم دین مفتی محمد نعیم کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، درجات کی بلندی کی دعا۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 89,50,000 سے تجاوز کر گئی، 4,67,300 سے زائد اموات، 47,60,000 سے زائد صحت یاب۔ امریکہ میں متاثرہ افراد کی تعداد 23,30,000 سے زیادہ ہو گئی، 1,22,000 جان کی بازی ہار گئے۔ پاکستان سمیت بیشتر ممالک میں 2020 کا پہلا سورج گرہن، محکمہ موسمیات کے مطابق سورج گرہن 2:34 تک جاری رہا۔ ہائیڈروگرافی یعنی سمندر کی پیمائش کے عالمی دن کے موقع پر پاک بحریہ کی شرکت۔ ہائیڈروگرافی کا عالمی دن ہر سال 21 جون کو منایا جاتا ہے۔ رواں سال عالمی یوم ہائیڈروگرافی کا عنوان سمندری پیمائش میں خود کار ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانا ہے۔
پاکستان نیوی بحری تحقیق کی جہتوں کو وسعت دینے کے لیے بھی پرعزم ہے، ترجمان پاک بحریہ۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج والد سے محبت کے اظہار کا دن، مقصد خاندان کے لیے والد کے جذبہ خدمت کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ جی ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ساتھ رہیے۔ سینئر صحافی زاہد فاروق ملک کی زیر ادارت جڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ میٹرو آج، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں، دورہ جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی دستیاب ہے۔ آج ہی اپنے ہاکر سے اپنی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.metrowatch.com.pk۔ Pakistan's first financial dairy. Covers investment like no one else. Business Recorder. Investments building block. طاقت جس کے دل میں موجود ہو، وہ چاہے کسی بھی مشکل میں گر جائے، ایمان اسے ہمیشہ ثابت قدم رکھتا ہے۔ جذبات میں آ کے روانہ تو ہو گیا ہے، لیکن واپس آتا بھی ہے یا نہیں؟ ہم آ گئے ہیں بھائی۔ بس اب بہت ہو چکا، اب تمہاری منمانی نہیں چلے گی سلیمان شاہ۔ خاموش! میں تیار ہوں استاد اعظم، اپنے بھائیوں کی طرح مسلمانوں کے خلاف حاضر ہوں۔ بھائی کو بھائی کا اور باپ کو بیٹے کا دشمن بنا دوں گا۔ اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ ہی بچائے گا، اور کون؟ میں تو سوکھی ہو کے کر دوں گی، پر تم سے کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاموش تم رہ نہیں سکتے، کام کا تمہیں پتہ نہیں، تمیز تم جانتے نہیں، تذیر تمہارے نیڑے سے نہیں۔ بڑی آپا جی سلام، کیا آپ بک رہے ہو؟ پوچھو والی آپا جی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ میں تجھے کہہ رہا ہوں میری چودھری صاحب ایک بیوی ہے، 4 الماریاں اور 2 پنکھے اور بس ہمارے پاس ایک ٹیوب ویل، باغ، سبزیاں، ہری کچور، گھاس والے میدان۔ اب یہ آپ کی ساری بات چیزیں نکلی ہیں، مال بھی نکلی، یہ بھی نکلی، دانت بھی نکلی، جذبات نکلی، آنسو نکلی، ہر چیز نکلی۔ شیر دل مسیحاؤ، سی رہے ہو سب کھاؤ، تم ہمارے موسم ہو، جان لیوا دشمن سے لڑ رہے ہو تم تنہا، رات ہو بھلے دن ہو، تم ہمارے موسم ہو۔ شیر دل مسیحاؤ، بھول کر تم اپنے غم اور دکھ عزیزوں کے، پاس ہو مریضوں کے، تم ہمارے چارہ درد کی دوا ہو تم، خوف کی شفا ہو تم، امن کی قبا ہو تم، چین کی ردا ہو تم،
हम दुआएं करते हैं तुम बहुत जजा पाओ, शेर दिल मसीहा। सर पे तुम कफन बांधे लड़ रहे हो सबकी जंग, और सब महाजों में सबसे आगे तुम ही हो। तोप है न कोई तीर, लड़ रहे हो बेशमशीर। तुम हमारा लश्कर हो, तुम निशान हैदर हो। रब करे लड़ाई में कामयाब हो जाओ, शेर दिल मसीहा। देश के जवां बेटो, जोश कम न होने दो। सारे दर्दमंदों को, सब खुदा के बंदों को दर्द की दवा बांटो। कौम को न रोने दो, तुम हमारे हीरो हो। आने वाली नस्लें सब तुमको याद रखेंगी। इश्क के निसाबों में, देश की किताबों में आएगा तुम्हारा नाम, क्योंकि तुमने हम सब की जिंदगी बचाई थी। मौत के दहाने से, रात के फसाने से रोशनी दिखाई थी। ताबत जजा पाओ, शेर दिल मसीहा हो, शेर दिल मसीहा हो। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله पाकिस्तान टेलीविजन ने जब 1964 में अपनी नशरियात का आगाज किया तो आपको याद होगा, कुछ को आप में से याद होगा कि या पुरानी रिकॉर्डिंग से हम देखते हैं कि बड़े बेसिक से बहुत सिंपल से, कई दफा एक बिल्कुल फ्लैट पीछे एक
پھٹا سا لگا ہوا ہے اور آگے نیوز کاسٹر بیٹھی ہے یا بیٹھا ہے یا اینکر بیٹھی ہے بیٹھا ہے اور پورا کا پورا پروگرام ہو گیا. سیٹس میں پھر آہستہ 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 خاص طور پہ ہم بلیک اینڈ وائٹ سے جب کلرڈ کی دنیا میں 1977-78 میں آئے, اس کے بعد سیٹس بھی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ بنتے چلے گئے ٹیلی ویژن پروڈکشن کی. آج آپ دنیا بھر میں دیکھیں تو سیٹس پہ شاید سب سے زیادہ پروڈکشن وائز کسی چیز پہ جو پیسہ خرچ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں سیٹس. چاہے کوئی ایوارڈ شو ہے, چاہے کوئی مارننگ شو ہے, چاہے کوئی کرنٹ افیئرز کا نیوز نائٹ ٹائپ شو ہے. سو سیٹس نے کانٹینٹ کے بالکل برابر آ کر کھڑے ہو کر ایستھیٹکس اور کریٹو پلیزر کے حوالے سے اپنی اہمیت بنا لی. آج ہم اسی حوالے سے بات بھی کرنا چاہیں گے اور کچھ پرانی یادیں بھی شیئر کرنا چاہیں گے فائزہ شاہ سے, جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن PTV کا جب ہم کہتے ہیں گولڈن ایرا کہتے ہیں. فائزہ گڈ مارننگ, السلام علیکم. وعلیکم السلام, ویری گڈ مارننگ. ہم گولڈن ایرا کی جب بات کرتے ہیں تو اس زمانے میں آپ نے بڑے بڑے ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کیا. وہ دور تھا میرا خیال ہے کہ جب سیٹس پہ کام بہت زیادہ شروع ہونے لگ گیا تھا. تو ہمیں یہ بتائیے کہ آج جب آپ سیٹس ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پہ دیکھتی کرتی ہیں تو پیسہ بہت زیادہ, اب دل نہیں کرتا کہ آج یہ بہت سا پیسہ مجھے ملے تو میں سیٹ ڈیزائن کروں. اس وقت تو بڑے کم بجٹس میں کام کرنا پڑتا تھا. بالکل صحیح بات ہے. اس not in 60s or 70s I joined very late, لیکن as you said it was the 90s میں, and as you know کہ اس وقت کوئی ہمارے ادھر کوئی as such training یا وہ تو تھی نہیں, it was on job training, اور اس وقت اتنا سمجھ بھی نہیں ہوتی تھی کہ کتنا بجٹ کیا یہ وہ, اینڈ آف کورس وہ ایک لمیٹڈ بجٹ ہوتا تھا اور اسی میں آپ نے سب کرنا ہوتا تھا. تو یس, وین آئی لک ایٹ دا سیٹ ناؤ تو اس وقت میرا دل کرتا ہے کہ ہاں ابھی بھی میں آئی ایم اسٹل ود شعیب صاحب, شعیب منصور صاحب کے ساتھ لاسٹ میرا پروجیکٹ ورنہ مووی کا تھا. تو دا بجٹ ڈیفینیٹلی ورکس, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے تحاشا بجٹ یوز ہو گیا ہے اینڈ آؤٹ کم از زیرو. ایسے بھی بہت ہیں, ایسے بھی ہے, ہاں انفارچونیٹلی ایسے بھی بہت ہیں. اور بعض دفعہ ایک سمپل ایک ٹویگ اور ایک فلیٹ جس طرح آپ نے کہا ہے اس پہ بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے. اٹس بیسکلی دا کنٹینٹ آف دا پروگرام, اور جو سیٹس ہیں اس کو ایک سپورٹ کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ ویسٹ میں خاص طور پہ ہالی ووڈ میں یا بیرونی ممالک کی وہ انسٹیٹیوٹس اور یونیورسٹیز جہاں پہ میڈیا اور فلم میکنگ کو پڑھایا جاتا ہے, وہاں پہ کیا سیٹس کو بھی باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے؟ اور یہ سیٹ ڈیزائننگ بھی ایک پوری ایک ڈفرنٹ, جس کا کیمرہ ورک ہے یا لائٹنگ ہے, بالکل ایک ڈفرنٹ آرٹ فارم ہے ایز اے ڈسپلن. ایبسولوٹلی, بالکل ٹوٹلی ڈفرنٹ انڈیپینڈنٹ سبجیکٹ ہے. اور ہمارے یہاں پہ جو دیر از اے کنفیوژن, جو انٹیریئر ڈیزائنر ہے وہ سیٹ ڈیزائنر بن گئے, یا جو سیٹ ڈیزائنر ہے وہ انٹیریئر ڈیزائنر ہو گئے. آئی وڈ پوائنٹ دا فنگر ٹوورڈز مائی سیلف, بٹ بیسکلی آئی واز این آرٹسٹ, تو آئی کوڈ مینج دیٹ تھنگ. لیکن جو سیٹ ڈیزائننگ ہے نا اسپیسیفکلی, ہماری آنکھ کو آئی واز ویری لکی ٹو بی ٹرینڈ بائی نثار مرزا صاحب, بدرالاسلام سید صاحب, رشید مرزا صاحب, ٹو لک تھرو دا کیمرا لینس, کیونکہ ہم نے ایک وہ اسکوائر باکس یا جو اسکرین ہے جو چیز اس میں نظر آ رہی ہے دیٹ از دا سیٹ. لانگ شاٹ تو ایک آدھ بار ہوتا ہے, بٹ موسٹلی اٹس یو نو واٹ یو سی ان دیٹ اسکرین از دا تھنگ. تو ڈیفینیٹلی اٹس اے ویری سیپریٹ سبجیکٹ اور بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. لیکن ابھی یہاں پہ ہم کیونکہ ابھی اسٹل وی آر ایوالونگ یو نو, تو اس لیول پہ یا ہیں ڈیفینیٹلی. آئی ڈونٹ مین ٹو سے کہ بہت برے سیٹ ہے یا یہ ہے, یو نو وی آر ورکنگ ویری ہارڈ آن اٹ. لیکن آپ نے جو آپ کا سوال ہے کہ ایک علیحدہ سبجیکٹ کے طور پہ پڑھا جاتا ہے یا پڑھایا جاتا ہے, یس ڈیفینیٹلی. اچھا فائزہ, اب یہ بتائیے کہ ایک سیٹ ڈیزائنر کے لیے کتنا اس کا بریف کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹر کہتا ہے اچھا مجھے 20 موم بتیاں چاہیے, مجھے 2 ایسے پیچھے ہار گیندے کے ہوں, کیونکہ ہم نے جناب کیا ہم نے چاند رات کا شو ریکارڈ کرا. وہ کیا مطلب وہ ڈائریکٹر بتاتا ہے یا سیٹ ڈیزائنر خود بیٹھ کے سوچتا ہے ہم چاند رات کا شو ہے, چاند رات کے شو پہ یہ ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ وین آئی واز ورکنگ وتھ PTV, تو جو رائٹر یا ڈائریکٹر یا پروڈیوسر جب اسکرپٹ آتا تھا تو دا فرسٹ پرسن دے ریچڈ واز دا ڈیزائنر.
کیونکہ ایز اے ڈیزائنر, ایز این آرٹسٹ, جب ہم کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وی آر ویژلائزنگ اٹ ایٹ دا سیم ٹائم. ایون ڈرامے میں بھی یہی ہوتا ہے. ایون ڈرامے میں تو بلکہ زیادہ ہے. اس میں جب جو لکھی ہوئی چیز ہے اور جو کسی شخص کا یا فیملی کا سیٹ اپ آپ دکھا رہے ہیں, جو تحریر میں جو الفاظ میں ہے, اس کو پھر آپ نے ذہن میں اس کی پکچر بنانی ہے. آپ اس کا کوئی بھی ڈیزائنر جو آرٹسٹ ہے نا, وہ ایک خالی کمرے میں بھی ہوگا نا, تو وہ اس کو کچھ کہا جائے گا نا, تو وہ فنشڈ پروڈکٹ دیکھ رہا ہوتا ہے. اچھا, اب تو زندگی آسان نہیں ہوگی, اب تو ڈرامے لوکیشن سے بنتے ہیں. بہت آسان ہے, بہت آسان ہو گیا نا. بہت آسان ہو گیا. بٹ ایز آئی سیڈ ایٹ دا سیم ٹائم, کیونکہ آپ پورا کمرہ, جب آپ ایک شخص داخل ہوتا ہے وداؤٹ دا کیمرہ, کمرے میں ایک فل امپیکٹ ہوتا ہے. آپ نے وہ تو نہیں دکھانا نا کیمرے میں, آپ تو اسپیسیفک شاٹس لے رہے ہوتے ہیں. کوئی کونا ہے, کوئی کونے سے آپ نے, اور اس میں بھی ضرورت پڑتی ہے سیٹ ڈیزائنر کی, یا استھیٹکلی اگر ڈائریکٹر اچھے ہیں تو وہ ڈائریکٹر کے دماغ پہ اصل میں اور اتنی چیزیں ہوتی ہیں نا, تو دیٹس وائی دا سیٹ ڈیزائنر کمز ان کہ جی یا کہ یہ فیلڈ آپ سنبھالیں, کہ if that person, if the designer sees something is disturbing or bothering, ادھر کان سے کوئی چیز نکل رہی ہے یا سر سے پیچھے سے سیٹ کچھ چیز بادر کر رہی ہے, تو move it. move it کہ جو آپ جس چیز پہ فوکس کر رہے ہیں وہ چیز ڈسٹرب نہ ہو, وہ شخصیت ڈسٹرب نہ ہو. ایگزیکٹلی. اچھا, یہ جو اب ڈیجیٹل بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں انٹرنیشنلی بھی ایوارڈز میں ملٹی اسکرینز ہیں, لائٹس, تو وہ سیٹ سے زیادہ وہ لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو والا ایلیمنٹ آ گیا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دس از وے, جیسے آپ نے کہا تھا وی آر ایوالونگ. ایگزیکٹلی, دس از سو ٹرو. اٹ بادرز می ا لاٹ. میں اپنی بات کر رہی ہوں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اور ریپرزینٹنگ اینی ادر آرٹسٹ اور ڈیزائنر, بٹ اٹ بادرز می ا لاٹ کہ آپ جو شخصیات ہیں, جو پریزنٹرز ہیں یا جو گیسٹس ہیں, وہ اس سیٹ میں اتنا دب جاتے ہیں کہ ایز یو سیڈ کہ وہ اتنا گلیمر اور گلٹری اور اتنا وہ لائٹ شو ہو جاتا ہے کہ اب احسن خان اور ماہرہ خان اگر ڈانس کر رہے ہیں, کوئی ایوارڈ شو ہو رہا ہے, تو وہ ان کا ڈانس ٹھیک ہے, لیکن اس کے ارد گرد اگر شب شبا ہے تو وہ مزے کا تھوڑا لگے. Of course, it depends on the program you are doing. You see? Exactly. اور یہ ساری لائٹ اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا, it is to enhance that. پاکستان میں کیا کس طرح کا کام آپ کرنا چاہیں؟ میری کیونکہ ملٹی ڈائریکشنل فیلڈ ہے, سیٹ ڈیزائننگ میں تو میں ہوں, اور شعیب صاحب کے ساتھ کر رہی ہوتی ہوں ان کے پروجیکٹ. اس کے علاوہ انٹیریئرس میں میرا بہت انٹرسٹ ہے, اور انٹیریئر ڈیزائننگ کی طرف میرے کوشش ہوگی کہ میں دوبارہ سے مزید کام کر سکوں اس میں. اور جو میری پینٹنگ ہے, جو میرا اسٹائل ہے ان پیلٹ نائف اینڈ پیسٹلز, وہ ایز ریلیکسیشن میں جاری رکھوں گی, وہ اپنے لیے ہے نا. لیکن بھائی میرا اب ظاہر ہے, میں فائزہ کو کتنے ہم 25-30 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. بالکل. ہم نے بہت سا کام بھی اکٹھے کیا. میں نے بہت سے پی ٹی وی کے 90s کے دور کے پروگرامز ہوسٹ کیے, جو سیٹ جو ہے وہ فائزہ کے لگائے ہوتے تھے. لیکن فائزہ ماشاء اللہ, آئی ایم ریئلی ہیپی the way you have evolved as a fine artist, and I will highly encourage you and recommend کہ جو 3D pop art ہے نا, اس کو آپ ضرور پاکستان میں آگے لے کے چلیں, and we would like to see more of it. Absolutely, کوشش یہی ہے. And thank you very much for inviting me. And I must say you haven't changed a bit. اچھا, جیسے بالکل آپ اسی ٹائم لاک ہو گیا. ٹائم لاک ہو گیا. ریزن وہ نہیں پوچھنا, نسخہ نہیں پوچھنا. نہیں, وہ بات نہیں. وہ بات آف دا کیمرہ بتاؤں. فائزہ, thank you very much. Indeed, it was a pleasure to have you on the show. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے فائزہ کے ساتھ ان کا ڈفرینٹ سا اسٹائل کام کا آرٹ ورک انجوائے کیا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. زندگی نے دی اجازت, پھر ملاقات کریں گے. خدا حافظ.
मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। सीनियर सहाफी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेर इदारत जुड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोजनामा मेट्रो आज, जिसमें मकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैन अवी खबरें। दौरा जदीद के तकाजों के मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी दस्तियाब है। आज ही अपने हॉकर से अपनी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.metrowatch.com.pk। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। बात करने का हक तो सबको है, लेकिन क्या वो बात दुरुस्त भी है? लेकिन जरूरी जो आपने सुना वो सच भी हो, वो अफवाह भी हो सकती है और किसी के एजेंडे का हिस्सा भी। तो जरूरत है एक इन्फॉर्म्ड डिबेट की, और इसीलिए मैं मिशेल बुखारी पूछूंगी वो सवाल जो है आपके जहन में, और जवाब दूंगा मैं इम्तियाज गुल। वजाहत करूंगा उन पेचीदा मसाइल की जिनके जवाब शायद आप भी तलाश कर रहे हैं। नुक्ता इम्तियाज देखिए हर जुमा से इतवार रात 10:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मजबूत कुव्वत मदाफ़त इंतहाई अहम है। ये हैं कुछ ऐसी ग़ज़ाएं जो हमारी कुव्वत मदाफ़त बेहतर बनाने में बेहद मुफीद हैं। कुव्वत मदाफ़त पैदा करने वाले फल चकोतरा, माल्टा, लीमू। पपीते में विटामिन सी का जखीरा होता है। दिन भर में दरकार विटामिन सी की मिकदार का 234% एक पपीते से हासिल हो सकता है। कीवी में न सिर्फ विटामिन सी बल्कि पोटेशियम की भी वाफिर मिकदार मौजूद होती है। ओपल कैपिटान इसमें शार्क के मुंह जैसी धात की जाली है। एक पेशे निगाह विंड स्क्रीन, बहुत सी जगह और 6 सिलेंडर्स रखने वाले आज भी इसकी दिल से तारीफ करते हैं और इसे ढूंढते फिरते हैं। उन्नीस 1950 और 60 की दहाई के उरूज में कैपिटान ने जर्मन मुआशी मोज़े को एक मुजस्सम हकीकत का रूप दिया। ये एक ऐसी कार थी जिसने कहा था मैंने इसे बनाया है। आला दर्जे का मॉडल, ऐशो आराम का मंजर।
1938 से लेकर 1970 तक के ओपल कैपिटान के तमाम मॉडल्स यहाँ जमा किए गए हैं। शुमाल मगरबी जर्मनी में कायम ये फॉर्म जोसेफ और मार्टिन डेगनर की मालकियत है, जो ओपल के परिस्तारों के लिए किसी तौर एक खजाने से कम नहीं है। दोनों भाई अपने वालिद की तरह एक कार डीलरशिप चलाते हैं, जैसे इनसे बेशतर इनके वालिद करते थे। वो ओपल बिलखसूस कैपिटान इकट्ठी करते हैं। लड़कपन में उन्होंने कैपिटान के पहियों पर बैठने का मजा लिया है, जब इनके पांव के नीचे लकड़ी के ब्लॉक्स रखे होते थे। अब इसमें हैरत अंगेज अंदाज में बिल्कुल नए तरीके से गिलाफ चढ़ाए गए हैं। दोनों भाइयों की तवज्जो एक ऐसी कार ने हासिल की है जो एक वक्त में ऑटोमोटिव दुनिया की भरपूर तरीन तवज्जो का मरकज रही है। जोसेफ डेगनार ने बताया कि ओपल कैपिटान को मगरबी जर्मनी की ऑटो इंडस्ट्री में एक शाहकार की हैसियत हासिल थी और शहरियों के लिए ये किसी स्टेटस से कम नहीं थी। ये हमारे लड़कपन और अवाइले जवानी के दौर में किसी ख्वाब से कम नहीं थी। एक ऐसी कार जो हमारे वालिद बमुश्किल ही अफोर्ड कर सकते थे, या सिर्फ आर्जी तौर पर महज एक नुमाइशी दिखावे के लिए। ये 1950 और 60 की दिहाई में एक तखयलाती और इंतहाई पुरताइश कार शुमार होती थी। 35 सालों पर मुहित कैपिटान के तमाम 8 मॉडल्स नए और पुराने यहाँ मौजूद हैं। दूसरी जानब कैपिटान की खुसूसियात ने उसे एक बेशकीमत तस्वुर दे दिया, और यही वो तस्वुर और बरतरी थी जिसका तस्वुर खरीदारों को मतलूब था। बाएं जानिब 1938 से 1954 की मॉडल की कैपिटान है, जो बड़े क्रोम और लंबी चूड़ियों वाले बड़े अमरीकी क्रूजर से मुमासलत रखती हैं। 1954 में कैपिटान को एक मुकम्मल कवर पर मुश्तमिल बॉडी दी गई थी, जिसमें गाड़ी के फेंडर्स और हेडलाइट्स को यकजा किया गया। इस तरह से ओपल ने अपने सबसे मशहूर मॉडल P26 तैयार किया, जिसमें P से मतलब पैनोरामिक विंडशील्ड है। पैनोरामिक विंडशील्ड की मदद से एक वसी पेश मंजर को देखा जा सकता है। ये रुझान दुनिया भर में अमेरिका से फैला। इस मॉडल को बादशाह की होल कैपिटान की उर्फियत भी हासिल हुई, क्योंकि इसकी पिछली लाइट्स पुराने जमाने की होल्स लाइट फैशन से मुमासलत रखती थी। इस वक्त ये कतई बड़ी कामयाबी नहीं थी, क्योंकि उसकी अकबी नशिस्त बहुत तंग थी। उस वक्त की इंडस्ट्री के बड़े कप्तान अपने सर पर रखी टोपियों के साथ इसमें नहीं बैठ सकते थे। लिहाजा सिर्फ 9 महीने की मुद्दत में ओपल ने एक नया मॉडल तैयार किया। ये कैपिटान का सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला मॉडल है। ये 1959 से लेकर 1963 तक तैयार किया गया। इन वर्षों में तकरीबन हर एक ज्यादा नई तादाद में कैपिटान रजिस्टर्ड की गई, बनिस्बत दीगर 6 सिलेंडर्स की हामिल तमाम जर्मन गाड़ियों के मुकाबले में। 1950 की दिहाई में जब जर्मनी के बेशतर लोग पैदल थे और काम करने वाली कार अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वजीर इक्तसादियात लेडविग एरिक के मातहत मगरबी जर्मनी की मईशत उरूज पर पहुंची थी। लोग अपनी बढ़ती खुशहाली को एक बड़ी कार के साथ देखना पसंद करते थे। इस तनाजुर में ओपल कैपिटान एक दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त मकाम पर एक बेहतरीन कार थी। आज के जमा करने वाले हर तरह से कैपिटान से वाबस्ता हैं। इनमें जुनूब मगरबी जर्मनी से ताल्लुक रखने वाले मार्क्स लीनियर भी हैं। इनकी अपनी कैपिटान इस वक्त रंगो रोगन की दुकान में मौजूद है। मार्क्स इस वक्त अपनी कैपिटान को तैयार करवा रहा है। ये वो गाड़ी है जिसमें वो अपनी अहलिया के साथ शादी के दिन घूमे फिरे थे। अगर आप ओपल कैपिटान चलाते हैं तो जरूर आप में कुछ खास मौजूद है, लेकिन ये सब बेकर्स, कसाब और इमारतों के ठेकेदार थे। 6 सिलेंडर्स की मौजूदगी ने इस कार को इस रेंज की तमाम गाड़ियों से मुमताज कर दिया था। सेडान की इस साबका खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए अभी भी कुछ बेहतर करना बाकी है, लेकिन मार्क्स लीनियर इस हवाले से बहुत उम्मीद हैं। बेशतर लोग गाड़ी की जानिब देखे बगैर ही चले जा रहे हैं। नई गाड़ियों के हवाले से मेरा रुझान भी कुछ ऐसा ही है। मैं हमेशा से पुरानी और नायाब गाड़ियों देखकर खुश होता हूँ। ये ऐसा ही है जैसे भीड़ में कोई शनासा चेहरा नजर आ जाए। वो चाहते हैं कि वो अपनी कैपिटान को एक धाती बोई नीले रंग में पेंट करवाएं। इस हवाले से मार्क्स लीनियर को स्विट्जरलैंड से असल स्प्रे आउट कार्ड्स और तराकीब हासिल करना पड़ी।
आपको ये एहसास करना होगा कि जर्मनी में दूसरी जंग अजीम के फौरन बाद किसी को भी धाती रंग के साथ कार ऑर्डर करने की जरूरत नहीं हुई। ये बहुत ही महंगी थी और बेशतर मौकों पर लोगों को हसद में मुब्तला कर देती थी। मार्क्स को उम्मीद है कि वो अपनी वेडिंग कोच को कुछ हफ्तों तक जल्द धाती बोई नीले रंग के साथ चुनेंगे। ओपल कैपिटॉन के तमाम तर वर्जन रॉसलशेम में ओपल के मगरबी जर्मनी के सदर दफातर में डिजाइन किए गए थे। जॉर्ज गैलन ओपल के साबिक डिजाइनर हैं। आबाई कंपनी जनरल मोटर्स ने इन्हें मुत्तहिदा अमेरिका से रॉसलशेम भिजवाया और बाद अज़ां वो मगरबी जर्मनी में मुकीम हो गए। जॉर्ज गैलन ने इस 1956 साख्ता उम्दा कैपिटॉन में सफर से लुत्फ उठाया। सालों तक ये कारें इसी हॉल में तैयार की गयी। ये बहुत ही सहल अंदाज में खामोशी से चलती है। आप सिर्फ एक उंगली की मदद से बड़े स्टीयरिंग व्हील को घुमा सकते हैं। ये सुनहरी कैपिटॉन अपनी इकसाम के हवाले से बहुत मुनफरिद है, जो ओपल की जुबली कार है। इसमें कार बनाने वाली कंपनी ने इस बात को यकीनी बनाया कि इसकी पेश करदा जुबली कार उस वक्त की कारों के हवाले से बेहतरीन मॉडल हो, और ये उस वक्त के ओपल के मॉडल्स में सबसे बेहतरीन था। इसने नवंबर 1956 में असेंबली लाइन को अंदर ही अंदर फैला दिया। In the 1950s, the K40 Hall 1950 में K40 हॉल को दुनिया भर में जदीद तरीन ऑटोमोबाइल गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से बेहतरीन सहूलतगाह समझा जाता था। आज ये बिल्कुल खाली पड़ा है। मुझे याद है यहाँ पर तैयार और निस्फ तैयार शुदा गाड़ियों की लंबी कतारें मौजूद होती थी। इस जगह पर गाड़ियों में सीटें लगाई जाती थीं और अगले मरहले में गाड़ियों के व्हील लगाए जाते थे। 1950 की दिहाई के इख्तिताम तक ओपल यूनिट में 32,000 अफराद पैदावारी अवामिल में काम करते थे। जनरल मोटर्स के एक जर्मन झेली इदारे की हैसियत से ओपल ने बहुत सी कामयाबियां हासिल की और ज्यादातर क्रेडिट कैपिटॉन को जाता है। इस हवाले से ये इस ब्रांड का सुनहरा दौर था। ओपल इकट्ठी करने के शौकीन मार्टिन और जोसेफ डैगनर फिल वक्त एक बहुत ही खास कैपिटॉन मॉडल की तलाश में सरगर्दा हैं, जो जरूरी नहीं कि सुनहरे रंग की हो। इस खानदान की मलकियत में यूरोप भर के मुकाबले में ओपल के मजमूई मॉडल्स की एक बड़ी कलेक्शन निजी हैसियत में मौजूद है। ये एक महंगा मशगला है, क्योंकि कैपिटॉन एक बेहतर मॉडल होने के बावजूद दीगर विंटेज गाड़ियों की कीमत के मुकाबले में महंगा है। इसके बावजूद इन मॉडल्स की मालियत कई लाखों में है, लेकिन इन दोनों भाइयों के नजदीक इनके एहसासात की कीमत बेहिसाब है। 1954 के इस कैपिटॉन मॉडल की एक बाकायदा शाहाना तारीख है। सहरा की रेत की वजह से इसकी सतह का रंग कदरे फीका हो गया है। इस कार के कागजात से जाहिर होता है कि असल में इसे मराकश के शाही खानदान के तसर्रुफ में रखा गया था। ये अम्र बहुत खूबसूरत है कि इसकी कुछ खामियों को बेहतरीन अंदाज में दुरुस्त कर दिया गया है। आप इसे शमाली यूरोप में नहीं चला सकते। ये मॉडल खुसूसी तौर पर शमाली अफ्रीका के लिए तैयार किया गया था और इसमें इसी वजह से हीटर नहीं है। मेरे ख्याल में मराकश के बादशाह रियासती मौक़ों के लिए रोल्स रॉयस इस्तेमाल करते रहे होंगे और रोजमर्रा ड्राइविंग के लिए ये उस वक्त शाही लेमोजीन का दर्जा रखती होगी। आप यकीनी तौर पर नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मराकशी बादशाह और दीगर अरब हुक्मरानों की तरह से दौलतमंद नहीं था। मैं तसव्वुर कर सकता हूँ कि वो एक ओपल कैपिटॉन से मुतमईन थे और हकीकत में उसे ही ड्राइव करते थे। बहुत पहले मैकेनिक्स ने एक और कैपिटॉन P26 पर मुरम्मत के काम को खत्म किया है। मार्क्स लीनियर की वेडिंग कोच भी एक P26 है। इस पर पेंट का काम तकरीबन खत्म हो चुका है और ये अपने घर के गैराज में वापस आ चुकी है।
लीनियर के बेटे फ्लोरीन ने अकबी नशिस्त पर रखने के लिए मदद फराहम की। इन्हें एक मुकम्मल मुलाजमत करने की जरूरत नहीं है, बस इस अमर को यकीनी बनाना है कि ये राहत बख्श और सड़क के काबिल रहे। एलके लीनियर अपने साथ उठाकर एक पुराना फोटो एल्बम लाए हैं। क्या आप रंग का मवाजना करने के लिए ये देखना चाहेंगे कि आया ये वाकई हमारी कार की तरह लगता है? हमारी डार्लिंग, ये लीनियर की वेडिंग कोच है जब उन्होंने 2002 में शादी की। और तभी से ये कैपिटान इनकी फैमिली का हिस्सा है। जगनर भाइयों ने कैपिटान 51 को लिया और बाहर घूमने निकल पड़े। इन्हें ये मॉडल बहुत पसंद है क्योंकि इस मॉडल को एक गैंगस्टर कार के हवाले से बहुत मकबूलियत हासिल रही है। ये कार 1950 की दिहाई के गैंगस्टर्स का पसंदीदा इंतखाब थी जो इसे डकैती करने के बाद वहाँ से फरार होने के लिए इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो पूरी तरह से जानते थे कि इस काम के लिए कैपिटान एक बेहतरीन इंतखाब है। जंग के बाद के इब्तदाई सालों में पुलिस इतने मुनज़्ज़म अंदाज में सहूलियात से लैस नहीं होते थे जैसे वो अब हैं। उन्होंने 18 हॉर्स पावर की हामिल फौजी गाड़ियां चलाई थी, जबकि इस कॉपिटेन की ताकत 58 हॉर्स पावर के बराबर थी। ये कारकर्दगी के लिहाज से भी हद दर्जा अफजल थी। इस गाड़ी की ताकत और इस्तात की वजह से पुलिस इस गाड़ी को चलाने वाले गैंगस्टर्स के खिलाफ बेबस रहती थी और उन्होंने कभी कोई मौका फराहम नहीं किया। गैंगस्टर कैपिटान का डिजाइन अमरीकी मॉडल से बहुत मुशाबहत रखता था और इसकी मकबूलियत का ये एक अहम जुज़ है। रॉसल शेम में उपल हाउस के सामने रिटायर्ड डिजाइनर जॉर्ज गैलन एक कतार में खड़ी कैपिटान का मुआयना कर रहे हैं। 1950 की दिहाई में मगरबी जर्मनी के लोग हर उस चीज के दीवाने थे जो अमेरिका से आई हो। यूं उपल ने शेवरले, ब्यूक और कैडिलैक के मॉडल से आइडियाज लिए और इस हवाले से P25 के लिए डिजाइन का तस्वर किसी इस्तिस्ना से खाली नहीं था। यहाँ ये डिजाइन 1958 के बड़े शेवरलेट डिजाइन से किस कदर मुमासलत रखता है। आप इसे यहाँ देख सकते हैं कि कैसे विंड स्क्रीन और अकबी विंडो कैसे एक दूसरे से मुशाबियत रखते हैं। ये 2 दरवाजों का विजन है, लेकिन 4 दरवाजे भी इससे जरा मुख्तलिफ नहीं थे और ये वो जिसे बुक कुत्ते की टांग कहते थे। आपको अंदर जाने के लिए इस कोने के नीचे से चढ़ना होता था। कुत्ते की टांग के सबब आप बमुश्किल कार में दाखिल हो पाते और मुतल्लिका शख्स को अंदर ले जाने के लिए एक टेक्निक अपनाना पड़ती थी। इस हवाले से इन्होंने लोगों को सिखाया कि पहले बैठें और फिर अपनी टांगे अंदर खींचें। इसमें किसी तौर कोई हर्ज नहीं, बिल्कुल नहीं। जॉर्ज गैलन ने कैपिटान के मुख्तलिफ मॉडल्स की खसूसियात को दीगर मॉडल से मुमताज करने के हवाले से खसूसियात की निशानदही की। 1954 में उन्होंने वो खसूसियात हासिल की जिसे बादशाह शार्क के मुंह की जाली से मुशाबित दी गई। ग्रिल खोलने के हवाले से ये खुला मुंह ओपल की खुसूसियात से मुशाबिह था। शार्क का मुंह सबसे पहले अमेरिका में 1953 में शेवरलेट क्रोवेट पर आवेजा किया गया था। यूं ओपल ने इसे कमोपेश इस सूरत में अपने बड़े मॉडल्स के लिए मुंतखब किया। इस ज़िमन में कैपिटन इस जाली नुमा डिजाइन के हवाले से सबसे मखसूस विजन का मॉडल था। मार्क लीनियर का P26 आखिरकार इसे लेने के लिए तैयार है। इसे अभी रोड के काबिल बनाने के लिए मजीद कुछ कोशिश और वक्त दरकार है। यूं नए बहाली तजुर्बाकार के साथ इनका ये पहला सफर है। इसे 1962 में बनाया गया था और यूं इसके और इसके ड्राइवर की उम्र यकसां बनती है।
मार्क क्लीनर अपने लड़कपन में ही ओपल कैपिटान के इश्क में गिरफ्तार हो गया था और फिर वो कभी इस प्यार के हसार से बाहर निकल ही नहीं पाया। लेकिन ये 100 किलोमीटर में 11.7 लीटर गैस इस्तेमाल कर लेता है। ये एक स्टीयरिंग अमूदी इस्तादा गियर तब्दीली के साथ 90 हॉर्स पावर को 3 रफ्तारों में बंद कर देता है। इस हवाले से फैसला कुन अंतर सिलेंडर्स की तादाद है। 6 सिलेंडर से ज्यादा कार बनिस्बत एक 4 सिलेंडर वाली कार के ज्यादा आसानी और सहूलत के साथ चलाई जा सकती है। आप तीसरे गियर के साथ ही तेज तरीन रफ्तार हासिल कर सकते हैं और फिर 165 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार हासिल कर सकते हैं, और मैंने ऐसा कई बार किया है। मार्क क्लीनर के पास अपनी नई मुरम्मत शुदा कैपिटान में सफर करने का एक खास मकसद है। वो अपने पसंदीदा अंगूरों के बाग से अपनी पसंदीदा वाइन लेने जा रहे हैं। ये राइन की मुखालिफ सिम्त में वाक़या है। कैपिटान पर क्रॉसिंग के लिए कार फेरी का बोर्ड नस्ब कर दिया जाता है। मार्क्स जब कैपिटान की तवील तारीख पर नजर डालते हैं तो अपनी पुरानी यादों का मंजर इनके सामने छा जाता है। लड़कपन में हमारे पड़ोस में एक कैपिटन और बाद में ओपल एडमिरल या ओपल डिप्लोमेट बहुत अहमियत की हामिल थी। कोई ऐसी गाड़ी चलाने से आप ज्यादा पुरतखय्युल और तसव्वुराती नहीं बन जाते, लेकिन आजकल आप कहेंगे कि कैपिटन को चलाने को बहुत कम समझा जाता है। इसका अपना एक उरूज था, लेकिन 1964 के बाद से कैपिटान के लिए एक तवील और कदरे सुस्त ग्राउंड के दौर का आगाज हो गया। बाद-अज़ां नया पेश किया गया मॉडल ओपल कैपिटान ए, जो अपनी बनावट और डिजाइन के हवाले से कदरे बॉक्सी था, काबिले फख्र कैपिटान जो कभी एक उरूज का हामिल था, आज महज एक टीम का हिस्सा बन चुका है। और शायद यही वक्त का मामला है। 1970 के अवाइल और ओपल की जानिब से कैपिटान की प्रोडक्शन रोक दी गई, क्योंकि जर्मन लोग अब बड़ी अमरीकी कश्तीनुमा गाड़ियों से ज्यादा मुतासर नहीं होते थे, बिलखसूस ज्यादा गैस इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों से। एग्जीक्यूटिव क्लास में एक कार की दिखावट बहुत अहमियत रखती है, और इस ज़मीन में यहाँ कुछ पॉइंट्स कम रहे हैं, और यही वो हतमी मराहल होते हैं। कैपिटान चूंकि अपनी कीमत में काबिल बर्दाश्त थी, और इसी वजह से उसे दीगर टॉप रेंज गाड़ियों के मुकाबले में कुछ सस्ते अवामिल के साथ बनाया गया, और शायद ये अवामिल ज्यादा साजगार साबित नहीं हुए। 33 साल के इस तवील अरसे में इसने इंतहाई खूबसूरत 8 पोशाकें पहनी। सबसे पहले एक लंबे और सतवा नाक के साथ 1930 के अख्ताम पर, फिर एक रेशमी तैरती कश्ती के से जिस्म की तरह से, चाको चौबंद और बड़े इंजन के साथ, फिर बाद-अज़ां खरीदारों की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक कैपिटान एक शार्क के मुंह जैसी जाली की तरह से आई, और कैपिटान को मौजूदा सूरत हासिल हुई। फ्रंट में वसी पेशे मंजर विंडशील्ड के साथ, और अकब में भी एक वसी पेशे मंजर के साथ। अब उसने हकीकतन एक नया सलीका हासिल कर लिया। P26 पहली लेन में वारिद हुई। वो फरोख्त के रिकॉर्ड्स के हवाले से बेहतरीन कैपिटान साबित हुई। उसे ताज पहनाने के लिए मैं खुद बहुत बेकरार हूँ। 6 सिलेंडर्स के साथ एक कैपिटान बादशाह की तरह से, लेकिन बाद-अज़ां जल्द ही बड़ी 3 आई। कैपिटान गोया के जैसे किसी समंदर में हो। एडमिरल और डिप्लोमेट के साथ कैपिटान ने अपना हेड अपने सर पर सजाया। अब सारे दिल थाम के बैठो, सच्ची चाह की बारी आई। जन्नत की यानी खैबर पख्तूनख्वा की बारी आई। ये खित्ता मेहमान नवाजों और दलेरों की बस्ती है, यानी शेरों की बस्ती है। इस खित्ते में मिलेगी खेती बाड़ी और जरखेज जमीन, और पसीने में डूबी शफाफ जबीन। कुछ बाबा रहमान के मिसरे और खुशहाल खटक की नज़में।
कुछ तारीख के खुले दरीचे, कुछ माजी की अनमिट रस्में, किस्सा खानी से मिलते हैं तीखे खाने, जिनसे सीखे हर पकवान में गर्म मसालों के अफसाने। रंगों और सुरों की संगत देवमालाई लगती है कैलाश की रंगत। बहुत पुराने हैं चित्राल के महल और उनके गहरे साए। बागों में कुदरत ने कैसे रंग खिलाए। ख्वाबों जैसी वादी में शंदूर का मेला, जिसकी बाजी हर अलबेला खुलकर और जी जान से खेला। हुस्न के है शाहकार सवाद और मालम जब्बा, बर्फ की शालें ओढ़े हैं कौसार निराले, पाक सफेद जबीनों वाले। दूर कहीं कालान के सब्जाजार और कलियां जैसे कोहे काफ की गलियां। एक तरफ नारान की जन्नत, एक तरफ कागान की जन्नत, बीच में परियों वाली झीलें। जो लब इनसे पानी पी लें, जन्नत के कुछ लम्हे जी लें। लोलोपत से झील का ठंडा मीठा पानी, जिसकी सब्ज मिठास पिए सब और जिए सब। जीते जीते गाएं नगमे, पश्तो और हिंदकों के खट्टे मीठे लहजे। खटक का रक्स और इसके फेरे, अतड़ की ताल के मस्त झकोरे। बाबू सर का खुशबू से भरपूर ये जादू, जादू जो सर चढ़कर बोले। दर्राए खैबर इस बस्ती में बसते हर जानान का दिल है, और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत। हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत। हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान। कोरोना वायरस से कैसे महफूज रहा जा सकता है? अपने हाथ साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक दिन में कई बार धोइए। अपने हाथ बाकायदगी से अल्कोहल वाले सैनिटाइजर या महलूल से साफ कीजिए। किसी भी छींकने या खांसने वाले शख्स से कम 1 मीटर का फासला रखिए। अपने मुंह और नाक को छींकते या खांसते वक्त झांपने के लिए अपना बाजू या टिश्यू इस्तेमाल कीजिए। बाद में टिश्यू को फौरन जाया कर दीजिए। अगर तबीयत खराब हो तो घर तक महदूद रहिए। बुखार, खुश्क खांसी या सांस की तकलीफ की सूरत में डॉक्टर से रुजू करें। अपनी मकामी सेहत की अथॉरिटी की हिदायत पर सख्ती से अमल कीजिए। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना वायरस से बचाव हमारे अपने हाथ में है। इसके लिए जरूरी है कि कुछ एहतियाती तदाबीर हम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें। सबसे पहली चीज ये कि अगर आप पब्लिक स्पेस में या गैदरिंग में या कहीं पे जाते हैं तो बिल्कुल
जाना बंद कर दीजिए और अगर जाना जरूरी है तो मास्क पहन लीजिए। हम सब जानते हैं कि हमें बार बार हाथ धोने की जरूरत है, अच्छे तरीके से और कम से कम 20 सेकंड तक। हाथों को धोने का असल तरीका जो है वो ये है कि आपने पहले हाथों पे साबुन इस तरह से लगाया, इसके बाद उंगलियों के बीच में यहाँ पे, फिर ये उंगलियां इस तरह से रखी, फिर ये उंगलियां इस तरह से रखी, फिर ये जो थंब है आपका वो साफ किया, फिर तब ये आपने अमल रिपीट किया। कम से कम आपने 20 सेकंड तक अपने हाथों को धोना है। किसी भी ऐसे शख्स से, सराउंडिंग में कोई भी ऐसा शख्स हो जिसको के सीजनल फ्लू हो या खांसी, नजला, बुखार हो, उससे कम से कम 3 फुट का फासला रखें। आइए सब मिलके इन एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें और इन क्राइसिस में अपना किरदार अदा करें, क्योंकि हमसे है पाकिस्तान। ईमान की ताकत जिसके दिल में मौजूद हो, वो चाहे किसी भी मुश्किल में घिर जाए, ईमान उसे हमेशा साबित कदम रखता है। जज्बात में आके रवाना तो हो गया है, लेकिन वापस आता भी है या नहीं? हम आ गए हैं भाई। बस अब बहुत हो चुका, अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी सुलेमान शाह। मैं तैयार हूँ उस्ताद आज़म, अपने भाइयों की तरह मुसलमानों के खिलाफ हाजिर हूँ। भाई को भाई का और बाप को बेटे का दुश्मन बना दूंगा। अब तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है? अल्लाह ही बचाएगा, और कौन। बात करने का हक तो सबको है, लेकिन क्या वो बात दुरुस्त भी है? लेकिन जरूरी जो आपने सुना वो सच भी हो, वो अफवाह भी हो सकती है और किसी के एजेंडे का हिस्सा भी। तो जरूरत है एक इन्फॉर्म्ड डिबेट की, और इसीलिए मैं मिशेल बुखारी पूछूंगी वो सवाल जो है आपके ज़हन में, और जवाब दूंगा मैं इम्तियाज गुल। वजाहत करूंगा उन पेचीदा मसाइल की जिनके जवाब शायद आप भी तलाश कर रहे हैं। नुक्ता-ए इम्तियाज देखिए हर जुमा से इतवार रात 10:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मजबूत कुव्वत मदाफ़त इंतहाई अहम है। ये हैं कुछ ऐसी ग़ज़ाएं जो हमारी कुव्वत मदाफ़त बेहतर बनाने में बेहद मुफीद हैं। कुव्वत मदाफ़त पैदा करने वाले फल: चकोतरा, माल्टा, लीमू। पपीते में विटामिन सी का जखीरा होता है। दिन भर में दरकार विटामिन सी की मिकदार का 224% एक पपीते से हासिल हो सकता है। कीवी में न सिर्फ विटामिन सी बल्कि पोटेशियम की भी वाफिर मिकदार मौजूद होती है। कोरोना वायरस से बचने के लिए मुझे और आपको बहुत एहतियात करनी है। सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आप पब्लिक स्पेस में या गैदरिंग में या कहीं पे जाते हैं तो बिल्कुल जाना बंद कर दीजिए, और अगर जाना ज़रूरी है तो मास्क पहन लीजिए। अपने हाथों को बहुत साफ कीजिएगा, बार बार अपने हाथों को धोएं, और लोगों से थोड़ा सा गैप रखिए, सोशल एक्टिविटी कम कर दीजिए, दूर रहिए, और अपने रब को याद कीजिए और दुआ कीजिए, क्योंकि रब की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आजादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आजादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नजरअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, और पहले से कहीं ज्यादा। अब ये जरूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें।